Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? गुड डे टू ऑल ऑफ यू. शुरुआत में ही बोल दिया, आई होप द डे इज गोइंग परफेक्टली फाइन. बाकी डेफिनेटली वेलकम टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे एडमिशन के चैप्टर को एक और प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ आज हम आगे लेकर जाएंगे. जब प्रॉब्लम पढ़े तो प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है वही तो समझ में आएगा. लास्ट लाइन में आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, बना देते हैं. पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ, ये क्या है? कैपिटल अकाउंट तो आज तक बनाया है, करंट अकाउंट क्या है? ओके, कैपिटल के जगह पे करंट अकाउंट होगा. एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. ओके, प्लीज नोट, अबाउ इन द बैलेंस शीट आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों दिखता है. वेरी सिंपली पुट, अगर आपको करंट अकाउंट एक क्वेश्चन में आता है तो कैपिटल के जगह पर आप करंट अकाउंट बनाओ, और कैपिटल ऊपर लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा, विच वी ऑल्सो डू व्हेन वी यूज्ड टू डू द चैप्टर ऑफ partnership final accounts. That capital gets replaced by the current account and the capital which is called as fixed capital, पक्का उतना ही, चेंज नहीं होता, वो जाता है लाइबिलिटी में. बाकी ऑब्वियसली लेट मी रीड द प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी लेजर इज द सेम. राधा एंड विकास वर इन पार्टनरशिप और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था 3:2. बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल विल गो टू द लाइबिलिटी साइड, क्योंकि उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, एंड उसके जगह पे करंट अकाउंट आएगा जिसमें हम बैलेंस लिखेंगे. लोन फ्रॉम बल्लू, पता नहीं जंगल बुक का बल्लू है कि नहीं, बट है, ये आप लाइबिलिटी साइड पे लिख लो. और क्रेडिटर, प्रेमाइसेस फर्नीचर स्टॉक डेटर. डेटर में अगर मैं थोड़ा मेरे पीछे पढ़ूँ, अ प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये आरडीडी है, देयर इज आरडीडी, तो वो तरीका जो है ना हमारा, उस हिसाब से लिख लेना. बैंक चला जाएगा बैंक में. फिर 1 अप्रैल 2019 को ओम को उन्होंने एडमिट किया, तो राधा भी है, विकास भी है, ओम भी आ गया. प्रेमाइसेस वर टू बी वैल्यूड एट 3,40,000, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा. फिक्सचर एट 2,800, कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा. प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 टू बी मेड, आरडीडी 2,000 का आपको बनवाना पड़ेगा, बनवा देंगे जी. स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 58,000, कुछ प्लस कुछ माइनस. दूसरा मुद्दा, ओम शुड ब्रिंग इन 80,000 एज कैपिटल, तो 80,000 कैपिटल आएगा, एंड 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो वो गुडविल, इट इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, रखो बिजनेस के अंदर. नॉर्मली कभी कभी विड्रॉ करते हैं ना. एंड ही शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. सो सर ऐसा है दैट टिल नाउ व्हाट वी हैव रेड,
in that the old partners ratio is 3/5 and 2/5 and the new partner was given 1/4. अभी पढ़ा. इससे जो हमारा न्यू रेशो है वो कितना आता है, उसके लिए हमको पहले करना पड़ेगा रिमाइंडर ऑफ 1 विच इज 3/4. व्हेन यू डू द फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशो एंड फॉर ऑल द 3 पार्टनर्स, एक एक करके आप उसका मल्टीप्लिकेशन करो जो आपको इसके पहले 10 बार पढ़ाया गया है. योर न्यू रेशो लैंड्स अप टू 9:6:5. नेसेसरी, क्योंकि इसके हेल्प से ही सैक्रिफाइस रेशो आएगा एंड यू डू रिक्वायर सैक्रिफाइस रेशो क्योंकि नया पार्टनर गुडविल लाया है. तो दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशो टू द ओल्ड पार्टनर्स विच हैज बीन इन्यूमरेबल, मतलब बहुत बार इसके पहले आपको ये बताया गया है. ओके, सो द सैक्रिफाइस रेशो विच इज एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन कम्स टू 3:2. ओके, ये तो हमने अनगिनत बार किया है. राइट नाउ क्वेश्चन में चला जाता हूँ. तीसरा पॉइंट, द लोन फ्रॉम बलू, पार्टनर नहीं है, समबडी, रीपेड थ्रू NEFT. इट्स अ डिजिटल एज, इलेक्ट्रॉनिक मनी, डिजिटल करेंसी is very useful and easily available. कोई भी RTGS, NEFT, गूगल पे, ये सब आराम से आप कर सकते हो. ओके, UPI यूज़ करके. सो NEFT मतलब बैंक यूज़ किया, बैंक का खाता यूज़ किया, और हमने लोन फ्रॉम बलू ऊपर कितना है 40,000. रखो भाई, ख़त्म करो तुम्हारा मामला, क्लियर, दे दिया, दे देंगे हम लोग. बाकी क्या बनवाना है ऑलरेडी डन है. मैं एक एक करके शुरू करता हूँ. कैपिटल अकाउंट एकदम ऊपर लाइबिलिटी, उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं. 2 लाख 1 लाख में टोटल नहीं लिखा. क्यों नहीं? क्योंकि ये ओम है ना, उसका भी कैपिटल आने वाला है, करंट नहीं. कैपिटल आएगा और वो इधर नहीं, ये करंट अकाउंट है, वो उधर जाएगा. तो थोड़ा रुक जा. करंट अकाउंट मेरे पीछे आया 2400 to 800, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2400 to 800. आफ्टर दिस वॉज लोन फ्रॉम बलू, एक लाइन, क्योंकि उसको हमको रफा दफा करना है. और फिर क्रेडिटर, एसेट का लिस्ट था, प्रेमाइसेस 2,80,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 22,800. टुडे वी डोंट हैव अ एसेट टेकन ओवर. अगर होता तो वी वुड हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल अकाउंट फॉर दैट ऑल्सो. डेटर, एंड इन दैट द RDD स्टाइल इज आवर स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन. बैंक अकाउंट 2,200. Then we had multiple revaluations. Premises का नया वैल्यू 3,40,000. तो बाहर लिख लेना, थोड़ा आप मैथ्स कर लो दिमाग में या लिख कर. डिफरेंस कितने का है? आई थिंक 60,000. तो वो इंक्रीज है, वो अप्रिसिएशन है, वो एसेट प्लस है. सेकेंड इफेक्ट ऑन द क्रेडिट साइड. फर्नीचर का नया वैल्यू 2,800. पुराना वैल्यू वट एवर इज इट, that will tell me whether there is an increase or decrease. It is 20,800. So this definitely it is a decrease. Depreciation लिख लो, decrease लिख लो, but it is an asset minus. तो asset minus debit में आपको लिखना पड़ेगा. तो to furniture and fixture 2,000. The difference mentally ऐसे करना नहीं है. Some people can do that because your maths is good, your calculative part is better, but बाकी के लोग लिख लेना. Next, a provision for bad debt, मतलब RDD of 2,000 was to be made. RDD तो प्रेजेंटली है ही नहीं, जीरो है. बोले नहीं आप 2,000 लिखो, लिख दिया जी. फॉर्म डेटर इट इज माइनस, बट RDD का जो ब्रैकेट है उसमें आपको ये समझना है. बाहर डेटर आएगा 16,200, RDD के ब्रैकेट में पहले तो जीरो था, अभी 2,000 है, दैट मीन्स प्लस, एंड इट इज अ लाइबिलिटी प्लस. तो डेबिट में आया 2,000. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टॉक 58,000 है. अगेन पुराना वैल्यू कितना है 54. तो दैट्स काइंड ऑफ गुड न्यूज़ क्योंकि 4,000 बढ़ गया. तो अप्रिसिएशन, इंक्रीज आप कह सकते हो. इट इज़ एन एसेट प्लस. तो क्रेडिट में आपको दिखता है बाय स्टॉक 4,000. तो वेरी कॉमन पार्ट इन एवरी प्रॉब्लम ऑफ एडमिशन, एसेट प्लस माइनस, लाइबिलिटी प्लस माइनस. तो वो जो कोड वर्ड है ना ALLA, दैट इज़ वेरी यूजफुल. ओम शुड ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल. तो चलो जी, ओम आप लेके आओ कैपिटल. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम कैपिटल, बैंक में डेबिट करो
कर दिया जी। और ओम में क्रेडिट करो, मेरे पीछे बिल्कुल नहीं, क्यों, ये करंट अकाउंट है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये करंट अकाउंट है तो किधर लिखूँ, आपको ऊपर दिखा, 1 मिनट दोबारा दिखा देता हूँ मैं। हाँ, सो दिस वॉज डेबिट इन बैंक अकाउंट टू ओम, दिस इज डेबिट, तो क्रेडिट किधर है, दिस इज वे कैपिटल इज रिटन ऑन द लाइबिलिटी साइड, ये क्रेडिट है ओम 80,000। सो द टोटल ऑफ कैपिटल इज 4 लाख, वो फिक्स्ड है, उसको रहने दो, उसको कुछ नहीं करना, मेरे पीछे नहीं लिखना, ओके क्यों, क्योंकि ये करंट अकाउंट है इसके लिए, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अभी ओम 20,000 का गुडविल लाया, तो पहले गुडविल आएगा, फिर वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो वो बैंक उधर, ओके गुडविल अकाउंट्स के नीचे, और फिर इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर, ओके चलिए वो हम कर लेते हैं। So when you distribute it on the debit side, generally you used to write to partners capital account, but today we don't have a capital account ना, ये current account है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वो current account आपको लिखना है। and then sacrifice ratio 3/5 2/5 जो 12,000 and 8,000, उधर 2 तो डेफिनेटली मेरे पीछे बाय आ जाएगा, बाय गुडविल, डोंट वरी मैं चला जाता हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करता, 12,000 and 8,000, ओके। द मोमेंट आप ये अगर कर लिए तो पॉइंट नंबर 3, द लोन फ्रॉम बलू वॉज रीपेड, बलू का हमने पूरा पैसा दिया, 40,000 कुछ था, हमने पूरा क्लियर कर लिया। कैसे क्लियर किया, बैंक से दिया होगा जी, तो बैंक से पैसे गए तो वो जो पेमेंट साइड है ना वहाँ पे आया, बाय लोन फ्रॉम बलू 40,000 पेड, एंड ये जो ऊपर लोन फ्रॉम बलू है लाइबिलिटी वो क्लियर पूरा बिल क्लियर, तो क्लियर कर लिया जी, डैश, ओके। हाँ, आफ्टर दिस दैट इज एक्चुअली द लास्ट पॉइंट, तो फिर आपको ये एक एक करके टोटल करना है, टैली करना है, कास्टिंग करना है। गुडविल बंद, थोड़ा ऊपर बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आपको बैलेंस आएगा विच इज 62,200 which will go to the asset side. Above that the revaluation account or the P&L adjustment account, credit is 64,000, debit में I think 60,000 which is profit on revaluation, and it will be distributed to Radha and Vikas in their old ratio which is 3:2। डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसका जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हो गया 36 and 24, इट्स टाइम फॉर मी टू गो अप ऑन स्क्रीन। नीचे आया सेकेंड इफेक्ट फॉर राधा एंड विकास, ओम का करंट अकाउंट में कुछ नहीं है तो इसके लिए वो खाली पड़ा है और वो आने भी नहीं आने वाला। अभी आप राधा का करंट और विकास का करंट टोटल करोगे, कर लो जी। द डिफरेंस फॉर द राधा करंट इज 5400 एंड विकास वट एवर जो टोटल आता है ना 34,800, तो वो भी बैलेंस है और वो बैलेंस बनकर लाइबिलिटी में जाएगा, बट नॉट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस, नॉट कैपिटल, करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट हमने लिख लिया, उसके नीचे राधा एंड विकास, बिकॉज ओम का करंट अकाउंट खुला ही नहीं, ओके वो लाइक बंद है, अभी मे भी खुल जाएगा आगे जाके। 85,200 एंड इवेंचुअली द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट अबाउट 4,97,200 ऑन बोथ द साइड्स, ओके दैट्स इट। क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम में आपको वैसे भी जर्नल एंट्री नहीं करने हैं और एक हद तक अच्छा रहता है क्योंकि जर्नल अगर आता है तो टाइम काफ़ी चला जाता है, तो एग्ज़ाम में घाई में ओके हड़बड़ी में लोगों को बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑल्सो। आई होप सॉल्व्ड वाला मैं सॉल्व करूँ या अनसॉल्व्ड वाला, द एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द concepts of the chapter of admission or for anything that I teach in accounts, finance or whether it is costing or taxation। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखें। अगर आप पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाए बगैर जाना मत और दोबारा ज़रूर यहाँ पर आना। टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का।
सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।